to inaugurate this session. Sure, Dr. Amit. God bless you. Thank you so much, ma'am. It is a matter of immense pleasure for me to be amidst this panel of distinguished speakers who have very kindly consented to be a part of the inaugural session of Himachal Pradesh National Law University's Campus Mentoring Program 2021. Students from the newly admitted batch 2020 of the BA LLB 5-year program, BBA LLB 5-year program, and LLM program. A very warm welcome to each one of you for this ambitious scheme announced by our university two years ago. Under the guidance and support of our Vice Chancellor, the mentoring scheme has constantly flourished, and this academic session we wish to take it to newer heights. Dear colleagues, students, we are joined by our Vice Chancellor, who will be delivering the inaugural address. The guest of honor for today's event is Dr. Upneet Lalli, Deputy Director, Institute of Correctional Administration, Chandigarh. And our chief guest is none other than Honorable Justice Vivek Singh Thakur from the High Court of Himachal Pradesh. आप सभी तीन गणमान्य अतिथियों को मेरा विनम्र प्रणाम और स्वागत. May I now request my Vice Chancellor, Professor Nishtha Jaiswal ji, to please deliver the inaugural address and also add to the words of humble welcome that I have offered for the distinguished speakers for the day. Ma'am, thank you so much for guiding us. I hand it over to you. Thank you, Dr. Amit. Honorable Mr. Justice Vivek Thakur, Judge, Himachal Pradesh High Court. Heartiest welcome, Lordship. Dhanya bhagya hamare. I also welcome Dr. Upneet Lalli for joining this program. It will be an anathema if I don't welcome all the students of first semester. Beautiful daughters and handsome sons. I'll keep on saying because I see all of you beautiful and handsome from the eyes of my heart. The endeavor of the university is not merely to raise your intellect level, but also to increase your emotional quotient. If you want to succeed in life, knowledge of books is of course necessary, but more than that, what is important that you have to be good human beings. Whatever profession you join, your human touch always matters. So few values which in fact flow in our veins, but still we need to imbibe. I would like to quote a Sanskrit shloka. Satyam ev ishuro loke satyam padma samashrita satyam mulani sarvani satyam nasti param padam. ये मूल मंत्र है. Truth is God and all virtues follow truth. All are reached in truth and there is nothing higher than the truth. This is the only truth. Whether we think about ourselves as individuals, as members of our family may be your family with your parents, your siblings, your institutional family, your peer family, or as members of the society, or ultimately members of the nation or members of the globe. Truth is, we may or may not believe, beliefs may be different, but ultimately we get the results of our deeds.
Therefore, there is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude. Difficulties always arise in life, but difficulties don't stay forever. As I told you very first day when we met, yes, I use my brains, I use my head, but more often I use my heart. My heart speaks. Whenever I face any difficulty, I simply say, I love one of my verses, which I keep on repeating. ए बंदे मुझे मिटाने को तुझे खुदा बनना होगा. ए बंदे मुझे मिटाने को तुझे खुदा बनना होगा. तू खुदा ही बन गया. तू खुदा ही बन गया तो मुझे मिटने का क्या काम. So we have to learn to face all kinds of difficulties. For that purpose, you must have faith in Almighty. Whatever name you want to give him, you give him the name of Ishwar, Allah, God, whatever you want to say. But have faith. And I'll simply say, शिद्दत से कर इबादत ए बंदे, शिद्दत से कर इबादत ए बंदे, क्योंकि तेरी इबादत में रब बसता है. Most of the time you talk about reasoning. That's very good. Now you have taken admission in law university and we are bound to teach you how to have logic, how to have reason, and you try to balance everything on reason. Reasoning also keeps on changing as much knowledge we gain. But if you want to realize what is God, then it is not through reasoning only. It is through love. Love, which is ascetic love, प्रेम भक्ति. कैसे कह दूं कि रब से प्यार करती हूं? कैसे कह दूं कि रब से प्यार करती हूं? अभी तो मैं के प्यार से ही नहीं निकली. So we have to forego our egos. Only then we can achieve whatever we want. That does not mean that I'm advising you that you don't live a worldly life or you don't have any desires. I'm just reminded of the saying of Mother Sarda, wife of Ramakrishna. The body means the existence of desire. Otherwise, it would not have existed. It will end when one no longer has any desires. अब मैं अपने शब्दों में बात करूंगी. मन तो बावरा है, मन तो बावरा है, भटकता है अनजानी राहों पे. मन तो बावरा है, भटकता है अनजानी राहों पे. चाहतों का अंत तो सितारों पे भी नहीं. There's no end to desires. You must have desires, but no, you have to rationalize your desires in the light of realities and truth. And your desire, you need desires for your happiness. Now, what is happiness? Meaning of happiness varies from person to person. It may be internal feeling, it may be worldly luxuries, it may be only your well-being, your integrity, your autonomy. If you make sacrifice for somebody, you feel happy. If you wipe out any tear from any cheek, you feel happy. If you pat any paining shoulder, you feel happy. And many a time when you adjust with your circumstances, you feel happy. एक ही खुशी है ज़माने में. Now, this is what my heart says. It is not that at no stage, no person faces oppositions or adversities, but we must learn how to adjust, how to struggle. एक ही खुशी है ज़माने में, उन्होंने निशाना न बदला, हमने राह न बदली. I repeat, एक ही खुशी है ज़माने में, उन्होंने निशाना न बदला, हमने राह न बदली. For me, happiness lies when I express my gratitude, when I wake up in the morning. I have still my 90 years old mother alive and I tell her, Mom, I love you. When I go to sleep before that, I tell her, Mom, I love you. My daughters tell me,
Mom, we love you. I tell them, I love you. I can even tell my students, I love them. Now, this is a form of gratitude. So we need to imbibe. In fact, this question always pierces my heart, and I'm always ready to ask my students, how many of you tell your parents every morning and every night, I love you, mom, I love you, dad? And this feeling of gratitude is very, very important, in fact, in our life. If we look at the Sanskrit shlokas, and where we talk about any person's good qualities, one of the qualities gratitude. I just refer to this shloka. It says, Ashtau guna purusham dipayanti, pragya cha kolyam cha dama shrutam cha, parakram cha bahu bhashita cha, danam yatha shakti kritagyata cha. It means 8 qualities a man has: wisdom, being noble, control on senses, knowledge, courage, reticence, donating as per one's own capacity, and finally, gratitude. So, gratitude is very, very important. We learn this gratitude from great persons' lives. I'm a great fan of Nani Palkiwala. I would like to quote him what he said. His will. When I die, give my sight to the man who has never seen a sunrise. Give my heart to one who has known the agony of the heart. Give my blood to a youth pulled from the wreckage of a car so that he might live to see his grandchildren play. Let my kidneys drain the poison from another's body. Let my bones be used to make a crippled child walk. Burn what is left of me and scatter the ashes to the wind to let the flowers grow. If you must bury something, let it be my faults and my prejudices against my fellow men. Give my sins to the devil. Give my soul to the God. If you wish to remember me, do it with a kind deed or word to someone who needs you. If you do all I have asked, I will live forever. I would also like to share with you what Mahatma Buddha said. Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. I will not stand in between you and other distinguished speakers, especially Honorable Lordship Justice Vivek Thakur. So I'll just conclude with my own पंक्तियां with a very deep meaning. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के जमाने के बच्चों को भी ये बात जरूर समझ आएगी. तू अहम में ही जीता था ए बंदे, तू अहम में ही जीता था ए बंदे, रब ने दिखा दी तेरी अहमियत. When we face difficulties, the situations like COVID-19, क्यों उदास सी दिखती हैं सब नज़में, क्यों उदास सी दिखती हैं सब नज़में, गलियां वीरान से ही बचाने को हैं चमन कई. महफिल दोस्तों से तो घर परिवार से है, महफिल दोस्तों से तो घर परिवार से है, गैरों से दोस्ती कर घर से बिछड़े थे तुम. वक्त का पहिया तो कभी रुका नहीं, वक्त का पहिया तो कभी रुका नहीं, बस सब्र का कोचवान चाहिए. तेरे पैसे तेरी शोहरत का दबदबा रहा नहीं, तेरे पैसे तेरी शोहरत का दबदबा रहा नहीं, तू भी मुझसा एक जिस्म है रूह की तलाश में, तू भी मुझसा एक जिस्म है रूह की तलाश में, तू मेरी फिक्र कर. Now this is brotherhood and friendship. तू मेरी फिक्र कर, मैं तेरी फिक्र करूं, तू मेरी फिक्र कर, मैं तेरी फिक्र करूं. इसी फिक्र को जगाने का ये समय है.
तो दिन रात भटकता रहा कुछ पाने को, तो दिन रात भटकता रहा कुछ पाने को, अपना दिल टटोलना ही भूल गया, अपना दिल टटोलना ही भूल गया। जब माँ बाप चंद हस्ताक्षरों की पहचान रह गए, जब माँ बाप चंद हस्ताक्षरों की पहचान रह गए, तेरे जीने मरने का एहसास किसको होगा? तो लर्न टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर टीचर्स। कल रिश्तों की नुमाइश थी, बस मेरी ही फरमाइश थी। कल रिश्तों की नुमाइश थी, बस मेरी ही फरमाइश थी। आज फिर रिश्तों में गरमाइश है, आज फिर रिश्तों में गरमाइश है। दैट इज योर चॉइस, तेरी ही ख्वाहिश है। मैं खुद से बातें करते थक गई, मैं खुद से बातें करते थक गई, कोई तो हमराज मिला। सो वैल्यू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर पीयर ग्रुप। तेरी नींद जो टूटी, तेरी नींद जो टूटी, आसमां नीला हुआ और धरती हरी। रियलाइजेशन, तेरी नींद जो टूटी, आसमां नीला हुआ और धरती हरी। पक्षी चहकने लगे, बागों में कोंपलें भरी। पक्षी चहकने लगे, बागों में कोंपलें भरी। समझ ले तू बंदा है, समझ ले तू बंदा है, बंदगी कर। समझ ले तू बंदा है, बंदगी कर। बैठा है रब, बैठा है रब, संवारने या बिगाड़ने को। बैठा है रब, संवारने या बिगाड़ने को। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू। Poetic, exuberant, and extremely inspiring, as always, ma'am. मैम, आपका असीम आभार व्यक्त करता हूं मैं अपने कलीग्स की तरफ से और अपने छात्रों की तरफ से। हम सभी छात्र हैं मैम, लेकिन कभी कभी बोलना जरूरी होता है। Many thanks to you, ma'am. I hope that your supervision will enhance the quality of our mentoring program for the coming session and for all the years to come. Thank you again, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेरा अगला आमंत्रण है डॉक्टर उपनीत लल्ली जी को, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ की अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं। स्टूडेंट्स इनसे आपसे मिल चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी परिचय के लिए इतना कुछ है आपके लिए कहने का। मनोविज्ञान और विधि दोनों क्षेत्रों से आने वाले बेस्ट इंसाइट्स को आप अपने रिसर्च, अपनी काउंसलिंग और ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म में आपने बहुत अच्छे ढंग से पिरोया है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं, ये पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस सपोर्ट हमारा किया है। हमारी यूनिवर्सिटी अभी भी नेसेंट स्टेजेस में है, लेकिन इस नेसेंट स्टेज में भी डॉक्टर लल्ली ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपना बहुत कीमती समय दिया है, आज भी दिया है। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर लल्ली, आपको आमंत्रण है मेरा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। You're most welcome. Thank you, Dr. Amit, and good evening, everyone. Good evening. It's Vivek Thakur and Ma'am Nishta Jaswal, whom I've been very fortunate enough and very grateful that I've been a student, and I have learned so much from her, and including every moment. They also have been moments great as well. आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, इट विल मेंटरिंग का प्रोग्राम, काउंसलिंग का है। आई रियली कांग्रेचुलेट द लीडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर निष्ठा जसवाल, फॉर टेकिंग दिस लीड इन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स मच मोर than merely formal education, but also preparing them for life. And मैंने जो मैम has already said, so we in fact I would start by asking students, और मेरा interaction इनके साथ continue रहेगा. But you are all, we are living in a very exciting times. It is described as the best of times and as the worst of times also. These are challenging times. And the only persons who have emerged, we've emerged stronger, is if we have learned to adapt to these changes, these COVID-19 pandemic changes that we are facing. In these moments, what
required, I'll just share some of my views. And of course, I look forward to providing counseling services to the students. We all, I mean, the students who are joining your university, I think they are very privileged, and they should be, normally you decide which university you want to choose. And I guess now the questions would have stopped from their parents and from their friends and relatives in terms of where you're going. But the question of why you're here and what you are here for, that is going to be very important. When we talk about that in terms of what you are going to be, how you're going to be spending your time for the next 5 years, and how you're going to be managing your time, that is something that at the end of it will decide कि कितना आप successful हुए and how you have emerged from all these 5 years of education. I always say that education is not for livelihood. Education has to be for life. Does it prepare us for life or not? And ma'am rightly pointed out, yes, there are many challenges. Life is full of challenges. In fact, even getting up from the bed itself is a struggle and a challenge at times. And transformation is something that doesn't come easily. It is difficult. We just have to observe from nature how transformation comes about. So if you've ever seen a caterpillar become a butterfly, it's a struggle for the caterpillar to become a butterfly. But when it becomes a butterfly and flies free, then we all admire its beauty. So the tenacity that is required and the transformation that will come about is through something that requires much more than just mere knowledge. Knowledge today, everybody feels that, yes, you know, they can acquire information you can get through Google. No doubt about it. Today, you may be, a lot of students would be much more well informed than even their teachers, maybe on some subjects, because you're just searching on that. But knowledge is much more than information. It is also processing that information, and the wisdom that is there from the ages, jo ma'am ne baatein kari hain, that's the wisdom that is acquired. Or jo skills aap seekhoge, whether it is communication skills, whether it is coping skills or resilience skills, and the attitude. Spoken about self. So these are 3 aspects that you'll really have to work on, is in terms of knowledge, in terms of skills, and in terms of your attitude. In psychology, I mean, researchers, persons may have a whole lot of skill, they may be highly intelligent, but if they are not motivated to work, then the performance is poor. So for performing at a high level, you not only need to be intelligent, you not only need to have good advocacy skills, let's say you want to become a good advocate, but at the same time, you need to be really motivated as well. And who motivates? Is it something coming from outside or is it something from within? That's again a question. And I found that a lot of students, in fact, during the last term, that the main challenge for a lot of the students is always in terms of, ma'am, how do we, we lose track. We lose that gumption, or we stop, we stop having that desire. We have the desire, but then we just don't want to do that. So it is a challenge in terms of how to motivate yourself as well. And lives of great men remind us that all the struggles that they have faced is, and the success that comes about is because they have been highly motivated. And motivation is in terms of what moves you to action. So you can ask yourself some questions in terms of what are the 2 things you want to do, and what are the 2 things you don't want to do. And the 2 things that you want to do and they spur you to action, those are the things, and why they spur you to action, that you'll have to see. So you wanted to join law, you've joined law, but do you want to attend the class or not? That is going to make the difference. Are you motivated enough to submit your assignments? Are you motivated enough to continue with your learning? That will decide at the end of the 5 years how much progress you've made. So keep that perspective in mind, and we will discuss aspects about how you can motivate yourself.
it is not in terms of just reward or telling yourself that, okay, you'll get your parents telling you that, okay, if you get this much percentage, we will give you this much money prize or anything, a watch or something like that. It has to come from a task, even looking at something that you've created. Like for me, creating something of a ma'am, like writing her own poetry, it's not because she's getting some award or appreciation, it's from within that it comes about, that you feel good about it. So helping someone who is in need, helping a poor litigant who is there for you, or judges delivering justice, that's the what motivates to continue with your work, to continue with your passion. And you must have seen that in this pandemic, we've seen doctors perform in huge challenging times. What motivated them to continue serving despite not getting really high pay? So I think if we have desire and the motivation of our society and community would be much better. So this is in terms of but also I think it is this the teachers will learn. I learned from my teacher, when I was doing my PhD, my to an area which was close to my heart, and of course, on which nothing had been done before. And I'll quote Khalil Gibran. It was saying that what Gibran says is that the teacher does not lead you to his own house of wisdom. You have to reach your own house of wisdom, and that's the journey we all enjoy. So already one of you, each person, each student is unique. You all have your unique strengths, your abilities, your skills, and each individual, when that seed wakes up and when that sprouts and grows, you need a good environment definitely for that, and you need to nurture it well. So you need to nurture yourself not only with good food, which is very essential, but nurture yourself with good thoughts, which are very, very essential. And that is again a challenge, because for both the young community, getting in terms of attracted towards maybe, let's say, junk food is much more easy as compared to healthy. These times have also taught us, we were away from for quite some time, that much healthy food can give you. So what you eat, your thoughts also become like that as well. So healthy, nourishing diet is extremely important, but along with that is also what you feed your mind. So what do you feed your mind with is you have to watch. Spending too much time on negative social media, it is going to stress you out. It's going to give you anxiety. It's going to create too much of tension. So watch your thoughts. Say, watch your thoughts, they become, and watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Your action will become your habit. Watch your habit, they become character. And watch your character, for your character becomes your destiny. Destiny is not something that is given out here. Destiny also, because we all have thought we have. So our thoughts are extremely important, and you just need to look at the perspective. Are you having positive thoughts? Are you thinking in terms of helping someone? Or is your thought of pulling someone down? Is your thought, if your thought is of pulling someone down, then obviously the end result and the consequence will not be something pleasant for either one. So watch your thoughts. When you get up in the morning, and gratitude is extremely significant and important. Are you grateful for what you have? Or are we always complaining? Are we grateful for our healthy body that we have and the whatever we've been given? So that is something we should watch out for. Are we telling us, "Aise nahi hoga, ye main nahi kar sakta hu, I'm an utter failure"? If that is so, then
there is going to be a challenge. And if we are thinking that, yes, I can do it, that makes a whole difference. You tell yourself that, yes, I can do it, you will take action accordingly. If you say, I can do exercise for 20 minutes, So one biggest challenge I've seen students faced is also procrastination, because we keep postponing, padhai karni hai, exercise karni hai, it will be tomorrow. So the biggest overload we have is on to, because on. So how to avoid procrastination is again your time management skills. You are all now responsible for your own life. It's like school education is over. In school, there used to be teachers telling you, monitoring each minute of yours in school. But in university, things are different. Though you are at a young age, still, you have a responsibility. You have greater independence. Along with that, it's a line from Batman, with great independence comes with greater power, comes greater responsibility. So you are responsible for your own life, and you are responsible for your own time as well. And that's something that is extremely important. Ask any successful person the reason for their successes, and you will notice that these are the persons who achieve so much. We all get 24 hours in a day. Nobody gets 25 hours. We don't get 1 minute more or 1 minute less. That is something that is equally given to all of us. But some people manage to do so much in that much time, whereas the others are all. Time is not short. So time is running very fast. Time flies. Time does fly, but then you are the pilot of your flight. So you can control in which direction and how you will move about. And that is something that if you think you are in control, you are in control. If you think you are driving a car, and the ones of you who are driving, you are in control, you realize you get less stressed out and you have the direction. So it's also important to know in which direction you're going. If you're sitting in your car and you don't know where you're headed for, it doesn't make a difference. So if you suddenly realize, I wanted to go to, let's say Delhi, but I've reached Jaipur. Now, what happened? Because you were not focused. So being focused on the direction that your life is going to take is important. Otherwise, that journey itself will be of really no use. And this is something that I guess is important, because being focused, because there are a whole lot of things that happen out. So being focused is something that students feel it's a constant challenge, because there are too many things that happen that remove our focus as well. And this is something I've seen that does take place, because social media again consumes a lot of time. What others think, what are the others doing? Peer pressure is extremely strong. And a lot of young people, young adults lose their focus if we get into alcohol, drugs, which make one go off track. So that's something that you have to learn to manage yourself and manage your time as well. It's not time management, it's you managing your time, prioritizing it and planning your day. That is most important. How you plan your day will have a significant benefit. Now in this pandemic, since your classes are, I believe, going to be all online, you'll have to decide on how you plan your day, how you organize your day. And again, it's something I would say that there are many aspects to life. Being successful, a lot of people think that having so much package is something that is successful. But at the end of the day, it's also important how happy you are.
So for happiness, you do need money, but it's not that you need too much of money. Happiness is something that happens to you when you do something well. And happiness, otherwise those comparisons, rat race will continue. And rightly said that yes, it's not only your IQ and your emotional quotient, but also the spiritual quotient that becomes important. Having faith in some higher power is something that also gives us a lot of strength and gives us a lot of hope as well, and makes us more grateful. And it's the greater power that is running our lives as compared to what we think we are doing. So I'll just end the address because I know the students we are keenly waiting for the chief guest as well. But I'll say that, of course, be strong. And that's one word, we'll say we need to be strong. We need to have a strong immunity to resist COVID-19, or now everybody's talking about strength as well. So it's not just physical strength, but mental strength as well. Mental well-being, being resilient, but also I'll put each word has a significance. So strength, self-motivated. Strength means S means be simple also. Don't be too complex, because then we are, losing our energy into many things. Be truthful. T stands for truthful or responsible. You're responsible for your own life. You can't blame anyone. A lot of people, everything else but themselves. So that you are responsible, you behave responsibly. Be organized. If you're organized, half the battle is won. You organize your day, you organize yourself, you will realize you're able to achieve much more in your thoughts. Be noble in your character. And last and most important, be grateful. Be grateful for what you have. Be grateful for the opportunity given to you to learn in a university like this. So be strong, and of course, be aware. Do accept whatever is there, and don't just sit on the couch. Don't be a couch potato. Do act, do take action, because you are the one who is responsible for moving. Otherwise, you'll keep complaining. So I wish you, all the students, all the best in this beautiful journey of your life. These are the years you're going to remember. You're going to look back fondly on them. I know right now you must be thinking, what are we saying? And this may sound as, too many thoughts coming out to you, but these are going to be the most wonderful years of your life, where you will discover yourself, learn to challenge yourself, ask questions, not only from your teachers, but also from yourself. And be curious, be creative, be communicative, and commit to yourself whatever you want to do. And choose wisely. Choose thoughts, choose your acts wisely. And I wish you all the best. Thank you so much for giving me an opportunity to share some of my views with you. And we all love you. Yes, we've not met, but the feelings are there, and that feeling that has emerged right from ma'am's address. Yes, Himachal Pradesh National Law University has a special place in my heart. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Upneet, for this very insightful and very useful talk. Not just students, I join my students in thanking you for directing our attention to very basic and very routine activities that can really change a life. I hope this year our association will really strengthen the quality of our program, and we really hope to see you at the university very soon. Thank you. अपने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर जायसवाल और रजिस्ट्रार प्रोफेसर एस.एस. जायसवाल जो हमारे साथ मौजूद हैं अपना कीमती वक्त निकाल के, मैं उन दोनों के बिहाफ पे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर का अभिवादन करता हूं। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए इनका सपोर्ट हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है।
I thank you, Honorable Justice, Your Lordship, for your gracious presence here for this inaugural session. We all already presume that your address will set the tone further for the furtherance of this, I use the phrase always, ambitious scheme launched by Professor Nishtha Jaiswal, our Vice Chancellor. With a warm welcome, for the benefit of the students who have joined, a brief look at your very inspiring biography is extremely significant. Justice Vivek Singh Thakur was born on 16th of April 1966 at Bilaspur in the village Lanchta, Tehsil Ghumarvi. He completed his schooling from Bilaspur and later did his bachelor's in science from the Government Degree College, Bilaspur. Thereafter, he enrolled for a bachelor's in law program and a bachelor's in journalism and mass communications program from Himachal Pradesh University. He stood first in his LLB exams and later completed his LLM from Kurukshetra University and wrote a dissertation for his degree titled Independence of Judiciary in India, a study with special reference to the appointment and transfer of judges. Extremely involved with curricular and co-curricular activities in college and as a student. He later enrolled as an advocate in the year 1990 with Himachal Pradesh Bar Council and started practice in law before various legal fora, including HP High Court, in revenue, civil, criminal, constitutional, service matters, arbitration and taxation laws. The list is unending. He also acted as a legal advisor to various organizations and served the state of Himachal Pradesh as Assistant Advocate General from the year 1998 to 2003. He was the Additional Advocate General again from 2008 to 2013 and Senior Panel Counsel to the Union of India till elevation as the Judge of HP High Court, where he took oath as the Judge on the 12th of April 2016. Students, it's our privilege to have him with us today as the chief guest. Sir, आपको अभिवादन और मेरा सादर निमंत्रण। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर निष्ठा जायसवाल जी, डॉक्टर उपनीति लाली जी, डॉक्टर SS जायसवाल जी, डॉक्टर अमित चतुर्वेदी जी व अन्य गणमान्य सभी उपस्थित महानुभाव और सबसे अधिक जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में इस वर्ष जिन्होंने प्रवेश लिया है और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सबको मेरा भी अभिवादन। डॉक्टर निष्ठा जायसवाल जी और डॉक्टर उपनीति लाली जी के सारगर्भित वक्तव्यों के बाद उन दोनों को मिलाकर बोलने के अतिरिक्त कुछ और अधिक बचता नहीं है। मैं जो उन दोनों की बातें समझ पाया, मुझे लगता है कि वो सबके लिए मैं अपने शब्दों में उसको व्यक्त करूंगा तो ये ना समझें कि उनके विचारों को चोरी कर रहा हूं। मैं उनसे सहमति जताते हुए अपनी बात को, उसी बात को अपने तरीके से रखने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते वो मेरा भी मूल्यांकन कर पाएंगे कि मैं कितनी उनकी बात को समझ पाया। मैं सबसे पहले तो जो दोनों वक्ताओं ने मुझसे पहले कहा है कि एक प्रिविलेज्ड हैं वो जिनको इस विश्वविद्यालय में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में प्रवेश लेकर के शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला है। देश में बहुत कम ऐसे छात्र हैं
बहुत कम प्रतिशत छात्र हैं जिनको ये मौका मिलता है। इसलिए सबसे पहले जो मोटिवेशन की बात आती है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना और डॉक्टर निष्ठा जसवाल जैसे वाइस चांसलर के नेतृत्व में उस विश्वविद्यालय में अध्यापकों का मार्गदर्शन मिलना, यही एक जीवन में सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। क्योंकि 2% व्यक्ति हायर एजुकेशन में आते हैं, जितने स्कूलों में +2 तक पढ़ते हैं उसका 2% हायर एजुकेशन में वास्तविक रूप में विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाते हैं, और उसका कुछ प्रतिशत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आता है। तो उन विशेषाधिकार, विशेष भाग्य वाले व्यक्तियों में से ये सभी छात्र जो हैं। इसलिए सबसे पहले तो मोटिवेशन के लिए जो एक आवश्यकता चाहिए कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन, तो वह तो एक प्रथम सीढ़ी तो ये सब चढ़ चुके हैं। इसलिए इनके जीवन में सफलता मिलना अवश्यंभावी है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब जैसा डॉक्टर उपनीति जी ने भी कहा, सफलता यानी क्या? ऊंचे पद पर पहुंच जाना, एक वकालत में बहुत बड़े एडवोकेट बन जाना, या किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचना, या मान लीजिए जज बनना, क्या ये जीवन की सफलता है? क्या इसको लाइफ में सक्सेसफुल एक पर्सन है उसका मापदंड कहा जा सकता है? यह मुझे लगता है कि नहीं। मैं तो ये कहता हूं ये कोई पैरामीटर ही नहीं है। सक्सेस का पैरामीटर है, क्या आप अपने जीवन को समझ पाए हैं? क्या आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य है उसके अनुसार निर्देशित होकर जीवन जी रहे हैं? LLB में या LLM में या BBA LLB में क्यों कर आपने प्रवेश लिया? क्यों सब्जेक्ट चुना? इसका भी कोई, क्या आपका एम, लाइफ में कोई एम है? अब इसमें 2 तरह की बातें आती हैं, जैसे मुझसे पहले भी कहा गया, भावनात्मक, आध्यात्मिक और भौतिक। इन सब 3 चीजों का मिश्रण करके ही लाइफ का एम और ऑब्जेक्ट तय किया जा सकता है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने आप से भी और सब लोगों से भी, और मैं कहता हूं सबको ये जिंदगी में प्रश्न पूछना ही चाहिए कि आखिर इस यूनिवर्स का ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों बना ये यूनिवर्स? उस यूनिवर्स में ये पृथ्वी, और उस पृथ्वी में व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ? और उस लाइफ में, जो इस धरती पर लाइफ है, वनस्पति के रूप में, जीवों के रूप में, जल जंतुओं के रूप में, उभयचर, जलचर, पानी में रहने वाले, धरती पर रहने वाले, और उन सब में एक मनुष्य नाम का एक श्रेष्ठ प्राणी जिसको कहा जाता है, इस सब का उद्देश्य क्या है? क्या हमारा मनुष्य होने के, अब पेड़ है, उगता है, बड़ा होता है, बीज लगते हैं, पकता है, और रिप्रोडक्शन उसमें भी होती है। अन्य जीव जंतुओं में भी रिप्रोडक्शन होती रहती है। मनुष्य में भी वो सारे गुण हैं, खाना पीना, कंज्यूम करना, उसका शरीर में उसके शक्ति आना, शक्ति से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अपने जनरेशन से आगे जनरेशन बढ़ाते जाना, ये सब समानताएं हैं। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते बाकी चीजों से क्या अंतर है? अगर साइंटिफिकली सोचा जाए, जैसे मैं बीएससी का स्टूडेंट था, जो क्यों मैंने बीएससी की, तो मुझे उसके पीछे भी कारण समझ आया कि इस सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की आवश्यकता रहती है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, एक सकारात्मक साधन रहता है। कारण मैं बताता हूं, जैसे जड़ में, चेतन में सब जगह ईश्वर है, ऐसा आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं। किंतु साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो जड़ हो या चेतन हो, हर एक वस्तु में एक संरचना है एटम की, न्यूक्लियस है, उसकी ऑर्बिट्स में
इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। वह जड़ हो या चेतन हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, हर एक व्यक्ति के अंदर वही एटॉमिक संरचना है। उस एटॉमिक नंबर चेंज होने से उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। इसी कारण मरकरी से गोल्ड बनाना उसका एटॉमिक नंबर चेंज करने से संभव हो जाता है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में ये जो हमारी संरचना है मानसिक तंतुओं की, ये जो आत्मिक विचारों की, इसके माध्यम से हम व्यक्ति के गुणों का विकास करके उसको ईश्वर के समकक्ष ला करके खड़ा कर सकते हैं। आज पक्षी उड़ सकते हैं, जल के जीव जल में रह पाते हैं, धरती के जीव धरती पर रहते हैं, लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि वो धरती के ऊपर भी रह सकता है, वो जल के अंदर भी जा सकता है, वो केवल वायुमंडल में ही उड़ान नहीं भरता, वह अंतरिक्ष में भी अपनी पहुंच बना सकता है। तो ये सब शक्तियां कहां से आई? ये वही मानव है जो कभी आदि मानव की तरह इस धरती पर घूमा करता था, लेकिन उसका निरंतर विकास होने के साथ साथ उसने हर क्षेत्र में उन्नति की। तो मेरा ये मानना है कि हमारी लाइफ का जो ऑब्जेक्ट है, वो मुख्य उद्देश्य जो है, वो एक अपनी सभी शक्तियों को, अपने सभी गुणों को विकसित करते हुए, इस सृष्टि के रहस्य को समझते हुए और उसके पीछे जो नियंता है उसको समझना और उसके समकक्ष पहुंचकर उसमें विलीन होना। विलीन होना कोई मरना नहीं होता। जब हम मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से इतना उन्नत हो जाते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा है, जो इस पृथ्वी के नियम बनाने वाले की इच्छा है, उसके अनुसार जीते हुए अनासक्त भाव से कर्म करते जाते हैं, तो निश्चित रूप से वह एक सफलता, मैं समझता हूं, होती है, क्योंकि उसमें ना दुख अनुभव होता है ना सुख अनुभव होता है। उसका एक उदाहरण देता हूं। सिकंदर ने विश्व विजय की कामना से आक्रमण करना शुरू किया देशों पर। वो जीतता चला आया, असंख्य लोगों की हत्याएं की, असंख्य लोगों को, बहनों को विधवा बनाया, असंख्य बच्चे अनाथ हुए, और वो अपनी विजय का झंडा गाड़ता हुआ भारत की धरती तक, भारत के हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए तक्षशिला तक पहुंचा। तक्षशिला के राजा आम्भी ने उससे संधि करके समर्पण कर दिया। उसके ध्यान में आया कि तक्षशिला एक विश्वविद्यालय है, ऐसा विश्वविद्यालय जहां विश्व भर के छात्र शिक्षा लेने आते थे। तो उसको पता लगा कि ये सबसे अधिक विद्वान लोग यहीं होते हैं। तो उसने कहा, इसके प्रधानाचार्य को मेरे पास लाया जाए, मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहूंगा। उसके सैनिक तक्षशिला के प्रधानाचार्य के पास पहुंचे। प्रधानाचार्य कहाँ बैठे थे? एक पेड़ के नीचे, एक धोती में और एक लोटा पानी का रख करके वहां बैठे हो। और उनको सिकंदर का सैनिक कहता है कि आपको महाराज सिकंदर ने बुलाया है। उन्होंने कहा, क्यों? कि उन्हें आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो उस प्रधानाचार्य का उत्तर था कि जिनको ज्ञान प्राप्त करना है वो मेरे पास आएंगे। प्यासा कुएं के पास चल करके आएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। तो सैनिक को लगा कि ये सिकंदर को जानता नहीं। उसने कहा, सिकंदर विश्व विजेता है, बड़े बड़े राजा उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और जो प्रणाम नहीं करते उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो उस प्रधानाचार्य ने उत्तर दिया कि आप नहीं। उससे पहले उसने कहा कि वो आपको मालामाल कर सकते हैं। तो प्रधानाचार्य का उत्तर था, मेरे जीवन की आवश्यकता एक धोती, एक पानी और एक भोजन है। भोजन ये पेड़ पौधे वनस्पति मुझे देती है, पानी मुझे ये झेलम की नदी बहती हुई मुझे पानी देती है, और इसके अतिरिक्त मेरी कोई आवश्यकता नहीं। तो जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं उसका संचय करके मैं क्या करूंगा, इसलिए मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। तब उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका सर धड़ से अलग किया जा सकता है। तब उस आचार्य ने, जो सत्य को पहचानता था, उसने कहा कि मेरा सर धड़ से अलग करने से उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा, तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा जीवन समाप्त? मेरी आत्मा को तो ना कोई मार सकता है न चीर सकता है। तुम अंत करोगे तो इस शरीर का करोगे,
मेरी आत्मा तो अंततः ईश्वर के साथ विलीन होनी है। तो ऐसा सत्य का जिसमें ज्ञान हो, केवल वाणी का नहीं, उसको अनुभव करने का ज्ञान हो, वही व्यक्ति ऐसे उत्तर दे सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान जाएंगे तो कोई भय, असफलता, सफलता, मृत्यु, जीवन, ये हमारे जीवन को विचलित नहीं कर सकते, हमें कभी डरा नहीं सकते, हमें रास्ते पर चलने से डिगा नहीं सकते। और उसके लिए आवश्यक होता है ज्ञान का आत्मविश्वास। जैसे अभी डॉक्टर उपनीत जी ने कहा कि इंफॉर्मेशन होना, इन सब चीजों का पता होना, ये एक अलग बात है, लेकिन उसको ज्ञान के रूप में समझना और समझने के बाद जीवन में धारण करना। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ईश्वर है कि नहीं किसने देखा, और बीच में ये भी आया कि रीजनिंग से परे जाना पड़ता है। मैं कुछ और बात कहता हूं, मैं कहता हूं रीजनिंग और मन दोनों को मिलाकर देखिए। एक साइंटिफिक व्यक्ति टेम्परामेंट के अनुसार ये सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह घूमते हैं और ग्रह वो अपनी परिक्रमा में चक्कर लगाते हैं और निश्चित परिक्रमा में चक्कर निश्चित समय में लगाते हैं और अपने इर्द गिर्द भी घूमते हैं। पृथ्वी उनमें से एक है, समय में घूमती है 24 निश्चित समय, 365 से 1/4 दिन में एक वर्ष का चक्कर पूरा करती है, और उस समय के अंदर सूर्य के विभिन्न प्रभाव पृथ्वी पर पड़ते हैं, रात और दिन बनती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो कोई साइंस का, विज्ञान का छात्र कहेगा कि यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। उसका अगला, जैसा स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ से भी ये प्रश्न जापान और अमेरिका में पूछे गए थे, तो उन्होंने यही पूछा था कि पृथ्वी को जानते हैं, सूर्य को जानते हैं, समझते हैं और इनके व्यवहार को समझते हैं, ये सब क्यों होता है? तो उन्होंने कहा ये विज्ञान है इसके पीछे। वो क्या है विज्ञान? ग्रेविटेशनल पुल। तो अगला प्रश्न आता है, वह ग्रेविटेशनल पुल इनके अंदर किसने तय किया? किसने वो ग्रेविटेशनल पुल को पैदा किया? और ग्रेविटेशनल पुल के बाद उनकी निश्चित परिक्रमाएं किसने तय की? वो निश्चित व्यवहार करेंगे, उसके पीछे कौन सी शक्ति है? और एक दिन ये सारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल में समा जाएगा और उस ब्लैक होल से फिर से सृजित, खत्म होकर फिर से इसका सृजन होगा। इसका निर्धारण करने वाला कौन है? सोने का एक एटॉमिक नंबर होगा, लोहे का एक एटॉमिक नंबर होगा, उस एटॉमिक नंबर के अनुसार लोहा अपनी तरह व्यवहार करेगा, सोना अपनी तरह व्यवहार करेगा। बीज से पेड़ ही निकलेगा, वही पेड़ निकलेगा जिस चीज का बीज है। इसका निर्धारण किसने किया? विज्ञान ये तो कह सकता है कि ये इस कारण से हो रहा है, लेकिन वो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा क्यों है? कद्दू की बेल में अगर संतरे के पौधे को ट्रांसप्लांट ना किया जाए, कलम ना की जाए, तो कद्दू ही लगेगा, उसमें संतरे नहीं लगते। तो ये सब चीजों का निर्धारण किसने किया? तो हम अगर अपने आसपास देखें तो ईश्वर को अनुभूति करना, उस शक्ति का अनुभव करना जिसके द्वारा हम सब संचालित हैं, वह बहुत आसानी से संभव है। और उसको वैज्ञानिक ढंग से अगर आप सब समझना करेंगे तो वैज्ञानिक ढंग से उसको समझना चाहिए। तो अगर वैज्ञानिक ढंग से समझेंगे तो निश्चित रूप से पूजा पद्धति में और उस संप्रदाय के कारण आई हुई रूढ़ियों के अनुसार आप अपना जीवन नहीं जिएंगे। आप एक स्वतंत्र विज्ञान के छात्र होने के नाते एक लॉ को भी विज्ञान की तरह विकसित करने में मदद करेंगे, जिसमें कि मनुष्य को सबको एक जैसा देखा जाएगा। अब हम कहते हैं अहम ब्रह्मा त्वम ब्रह्मा जगत ब्रह्मा, मतलब मुझ में भी वही एटॉमिक संरचना, जगत में भी वही एटॉमिक संरचना, इस सारी सृष्टि में वही एटॉमिक रचना, तो हम में भेद क्या है? और जब भेद नहीं है तो फिर आर्टिकल 14 जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो वो उसके साथ जब भावनात्मक आध्यात्मिक भाव भी जुड़ेगा तो आप लॉ को भी अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब बात आती है समस्याओं की।
जीवन में सबसे पहले अपना उद्देश्य तय करना पड़ेगा। आप बनना क्या चाहते हैं? आप सफलता किस चीज में देखते हैं? आप एडवोकेट्स भी बन सकते हैं, आप जज भी बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, और इवन लॉ की पढ़ाई करने के पश्चात भी आप कोई अन्य कार्य, अन्य प्रोफेशन अपने जीवन में चुन सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए या केवल धन उपार्जन के लिए नहीं होती, यह आपके अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा के कारण भी पढ़ाई होती है। और मैं समझता हूं पढ़ाई करनी ही इसलिए चाहिए, पढ़ना इसलिए ही चाहिए कि हमें ज्ञान अर्जित करना है। उस ज्ञान अर्जित करने के कारण हमें धन उपार्जन का माध्यम मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और उस उपार्जन का साधन ना मिलने पर हमें उसके कारण हताश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन का लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर सिंहासन चढ़ते जाना, किंतु पहुंचना उस पार जिसके आगे राह ना हो। और राह किसके आगे नहीं है? जब हम इस सारे रहस्य को समझ पाएंगे। तो लॉ की पढ़ाई करते करते मैं ये कहूंगा, जो मैंने भी किया, कि आप सब प्रकार की पुस्तकें पढ़ें, राजनीतिक शास्त्र को भी पढ़ें, आर्थिक शास्त्र को भी पढ़ें, आध्यात्मिक शास्त्र को भी पढ़ें, और उसको मेरी बातों पर जाकर विश्वास ना करें, स्वयं अपने मन से उसको विश्वास, अपने उसका अनुसंधान करें, अन्वेषण करें, रिसर्च करें, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करें। जैसे पहले भी कहा गया कि अपने अंदर उन चीजों के उत्तर खोजें। और ईश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया। अगर सब कुछ सृष्टि की रचना के अनुसार ही घटित होना होता तो मनुष्य को ना मन दिया जाता, ना बुद्धि दी जाती। तो ईश्वर उसको एक रोबोट बना देता और उसमें कंप्यूटर की तरह प्रोग्रामिंग कर देता, और उसके अनुसार हमारे जीवन का संचालन होता रहता। हमारा जीवन कई चीजों के साथ संचालित होता है। और मेरा ये मानना है, आप माने ना माने उसके लिए बाध्य नहीं, मैं अपना शेयर कर रहा हूं विचार। मेरा ये मानना है कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, जेनेटिक अनुवांशिक आधार पर हमारे अंदर कुछ स्वभाववश आदतें आती हैं जो इनहेरेंट होती हैं। वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। और ईश्वर ने हमें मन और बुद्धि और प्रयास करने की जो समझ दी है, निर्णय लेने की जो क्षमता दी है, उसके अनुसार हम चर्निंग कर सकते हैं, छान सकते हैं कि अपने जीवन में किन किन आदतों को हमने विकसित करना है और किन किन उन बुरी आदतों को हमने छोड़ना है। और उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास मन को करना पड़ता है। और उसका एक उदाहरण है कि जिस प्रकार अगर आप एक ही चीज को सुबह उठना शुरू करते हैं तो अपने आप बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सुबह जगाना शुरू कर देती है। आप देर से उठना शुरू करते हैं तो देर से जगाना शुरू कर देती है, तो आपको नींद उसी तरह वो साइकिल बन जाता है। उसी तरह जब मन को हम छोटी छोटी बात में नियंत्रित करके साधते हैं तो वो हमारी इच्छा अनुसार व्यवहार करना शुरू करता है। और जब मन के अनुसार चलते हैं तब वो कहीं भी डुबो देता है। इसका भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, ये ईश्वर, हे कृष्ण, हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन और सबसे बड़ा शत्रु कौन? तो उसका उत्तर एक ही था। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था, मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जब हम मन द्वारा संचालित होते हैं तो ये सबसे बड़ा शत्रु है, और जब मन को अपने आत्मा और बुद्धि के अनुसार संचालित करते हैं तो ये सबसे बड़ा मित्र है। कैसे? जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो अब आप मन को संचालित करते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार पढ़ने बैठते हैं, जल्दी उठते हैं, रात को देर तक पढ़ते हैं, अधिकाधिक समय अपने लक्ष्य में लगाते हैं। अगर आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए समय निकाल करके उसके लिए परिश्रम करते हैं। लेकिन जब आप मन द्वारा संचालित होते हैं तो मन कहता है थोड़ा सा और सो लीजिए, आज नहीं कल पढ़ेंगे, जैसे डॉक्टर उपनीत लाली जी ने कहा। और कल तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि कल मन फिर कहता है आज नहीं, कल कल कल। तो वो मन के द्वारा जब हम अधीन होते हैं तब वो मन हमारा शत्रु हो जाता है। और जब मन को अपने अधीन रखते हैं, अपनी मोटिवेशन अपने लक्ष्य के अनुसार संचालित करते हैं, तो वही सबसे बड़ा मित्र होता है।
और इस मन की शक्ति के आधार पर ही मैं कुछ उदाहरण दूंगा इस बात के लिए कि विचार, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र और डेस्टिनी जैसे अभी बात की गई वो किस प्रकार आती है। तो वो मन से ही विचार उठते हैं और विचार से व्यवहार में आया और व्यवहार से स्वभाव बना और जैसा स्वभाव है वो आपका चरित्र है और आपका चरित्र निर्धारण करता है कि समाज में आपका स्थान क्या है। मैं बहुत बड़ा जज हो गया लेकिन मैं करप्ट हूं, मैं गुस्से वाला हूं, मैं अपने जीवन को एक जज की भांति व्यतीत नहीं करता हूं, तो क्या केवल जज होने के कारण ही मेरा सम्मान हो जाएगा? नहीं, मेरा सम्मान होगा मेरे व्यक्तिगत चरित्र के आधार पर। और व्यक्तिगत चरित्र में नशा ना करना, गलत बातों पे ध्यान ना लगाना। अब गलत और सही क्या, इसको भी लोग कहेंगे कि रिलेटिव टर्म्स हैं और आजकल के छात्र तो कहेंगे कि आपकी कोई अब जनरेशन गैप की भी बातें आती हैं। मैं नहीं मानता जनरेशन गैप कभी होता है, क्योंकि मूलभूत मूल्य वही रहते हैं। एक जनरेशन हो, दूसरी जनरेशन हो, तीसरी जनरेशन हो। उदाहरण मैं देता हूं एक चीज का। महर्षि व्यास से पूछा पुण्य क्या पाप क्या, तो सारी जनरेशन के लिए उत्तर है पर पीड़नम पापाय पर पीड़नम परोपकाराय पुण्यम। जिससे दूसरे को पीड़ा हो वो पाप है, जिससे दूसरे का भला हो, परोपकार हो, वो पुण्य है। तो ये कोई सी भी जनरेशन आए, ये नियम तो एक ही रहेगा। उसी तरह मन को नियंत्रित करना और मन द्वारा नियंत्रित होना, इसके ऊपर ये तो हर जनरेशन में एक जैसा ही चलेगा। नशे में डूबना, हमारी जनरेशन के लोग भी नशे में, मैं हॉस्टल में रहता था, मुझे भी ऐसे मित्र मिले जिन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी सी चख लो, फिर उन्होंने दोस्ती का वास्ता दिया, फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं तो उंगली से लगा के होंठ से लगा लो। मैंने कहा अगर नहीं लगाऊं तो कहा उन्होंने कि तो दोस्ती खत्म। तो मैंने उनको ये कहा मैं तो खत्म नहीं कर रहा, मैं तो आपका मित्र ही रहूंगा, लेकिन आप इस घटिया चीज के लिए दोस्ती खत्म करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। तो रात को तो नशे में थे, सुबह जब उठे तो वो नमस्ते भी ना कर पाए। मैंने ही उनको नमस्ते की तो उन्हें बोला हो हमने तो कहा था तेरे हम दोस्त नहीं। मैंने कहा तो आपने कहा था, मैंने तो नहीं मना किया था, मेरे लिए तो आप मित्र हैं, आपका निर्णय आपके हाथ में है। फिर वो बात वैसी की वैसी हो गई। तो वो अपनी आदतों के साथ जिए और मैं मानता हूं अपने स्वभाव के कारण, अपने दृढ़ निश्चय के कारण मैं तो बचा ही, मेरे संपर्क में जितने लोग आए उन सबको भी अपनी तरह बनाने का श्रेय ईश्वर ने मुझे दिया। मैं कुछ नहीं हूं, प्रयास हमने करने होते हैं। ईश्वर ने वो श्रेय मुझे दिया कि उनके जीवन में भी सुधार आया और आज वो अच्छे अच्छे स्थानों पर, और फोन भी आता है तो उन बातों को याद करते हैं। तो इसलिए बुरा किसी में न देखें और अपने आप में बुराई ना आने दें। जो बुराई है उसका परिष्कार करते जाएं और अपने जैसे औरों को भी बनाते चले जाएं। यही भारत की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिकंदर की तरह तलवार लेकर के जाएंगे या चाइना की तरह दूसरे की धरती पर विजय करते जाएंगे। अपने विचारों से, अपने सद्गुणों से विश्व को सद्गुणों से आह्लादित करेंगे, भरेंगे और पूरे विश्व को अपना परिवार की तरह जीवन व्यतीत करने पर करेंगे। अब मैं कुछ 2-3 घटनाएं सुनाकर, मुझे लगता है समय अधिक हो गया है, अपनी बात को समाप्त करूंगा। जैसे एक उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह का। सफलता असफलता की बात आती है ना, मन की निश्चय की बात आती है ना, तो उनको कहा गया कि औरंगजेब का शासन है, अत्याचार हो रहे हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा एक महान व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता है। तो महान व्यक्ति कौन होगा? तो उन्होंने अपने पिता को कहा, किसी और की ओर इशारा नहीं किया। अपने घर से बलिदान के लिए 9 साल का बच्चा पिता को प्रेरित करता है। और यही बात खत्म नहीं होती। जब समय आता है तो 2 बच्चे दीवारों में चिनवाए जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह विचलित नहीं होते। 2 बच्चे चमकौर साहब की गढ़ी के बाहर युद्ध में मारे जाते हैं, तब विचलित नहीं होते। 40 मुक्ते उनको कहते हैं आप हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हारे सिख नहीं, और उनका साथ छोड़ने की बात कहते हैं तो वो हंसी से खुशी से कह देते हैं आप जाइए। वो अलग बात है कि वो पत्नियों के ताने सुनकर वो फिर वापिस आते हैं और गुरु के साथ शामिल हो जाते हैं।
लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जीवन इतने कष्टों के बाद बीतने के बाद भी वो विचलित नहीं हुआ और उन्होंने कहा चिड़ियन ते बाज तुड़ाऊं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो ये भाव जीवन में होना चाहिए। वो कब होगा? जब ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद के घर में खाने को कुछ नहीं है, दुर्गा माँ काली माँ से साक्षात्कार हो रहा है और काली माँ से महर्षि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मांग लो जो मांगना है। और वहां मांगते क्या है? कि मेरे जीवन का सदुपयोग हो। वो नहीं मांगते मुझे राशन पानी, मेरा घर, सोना चांदी, मेरी माँ, मेरे भाई बहन, नहीं। तो लक्ष्य के प्रति दृढ़ता। दुर्गा भाभी का नाम शायद बहुत कम लोगों ने हम में सुना। उनके पति अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़े थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से साथ जुड़े थे। बम बनाते समय बम फट गया और पति की देहांत हो गया। अब पति की लाश को जलाते तो पता लगता कि मृत्यु हुई है। धमाका हुआ था, पुलिस छापे मार रही थी, तो पति की लाश को बांध करके गंगा जी में अपने बहा दिया। यानी जब लक्ष्य सामने है तो कोई भी इमोशंस हमें ओवर पावर नहीं कर सकती। हम किसी भी हद तक अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं, वह दृढ़ता। ऐसे जीवन जब आप पढ़ें, डॉक्टर अंबेडकर क्लास से बाहर बिठा दिए, पानी घड़े से पीने नहीं दिया, तालाब का पानी पीने नहीं दिया, मंदिर में घुसने नहीं दिया। और जब एक ऑफिसर के नाते बड़ौदा में नौकरी कर रहे हैं तो पता लगा जबकि इनको कि ये फलान अनुसूचित जनजाति से है, तो पीएन जो उच्च अपने आप को सो कॉल्ड उच्च जाति का था, वो पानी का गिलास भी दूर से फेंकता था, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। अपने जीवन में महानतम लक्ष्य जिसको प्राप्त करना था उसको प्राप्त किया। तो ऐसी जीवन गाथाएं अगर हम अपने में पढ़ेंगे, इंटरनेट का प्रयोग इसके लिए करेंगे, ना कि चैटिंग के लिए करेंगे, क्योंकि वही चीज जिस प्रकार मन है उसी तरह आजकल मोबाइल है। ये हमारा सबसे बड़ा अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। भले से अच्छी चीज भी इस पर मिलेगी और नरक से भी बदतर गंदी चीज भी इसमें मिलेगी, लेकिन उसमें से हमने क्या लेना है वो हमने चुनना है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, मुझे लगता है उदाहरणों से कुछ बात समझ आई होगी। और कहने को तो बोलते ही चले जाएं, सोने वाले भी तंग हो जाएंगे, सुनने वाले भी सो जाएंगे। तो अच्छा यही है कि मैं अपनी बात को मैं कहूंगा कि इससे दिशा लें। धार्मिक ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथों की तरह ना पढ़ें, एक वैज्ञानिक मन के साथ पढ़ें। जीवन गाथाओं को एक कहानी की तरह ना पढ़ें, उसमें से प्रेरणा लें कि उन्होंने किस तरह का जीवन जिया। और इस सब को जानने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करें, संसाधनों का प्रयोग करें जो हमारी पीढ़ी को प्राप्त नहीं था। तो उस तरह से आप वैसे भी विशेषाधिकार वाले हैं इंफॉर्मेशन की दुनिया में, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया में, एक्सेस आपको हर फील्ड में है। तो उसके लिए हर क्षेत्र में अपने जीवन को उन्नत बनाएं। केवल ये ना सोचें कि केवल लॉ करके, LLB करके, LLM करके आपके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। इतनी ही बात कहते हुए सबके जीवन के लिए शुभकामनाएं और विश्वविद्यालय के सभी व्यक्तियों को, उपकुलपति सहित और सभी सहयोगियों को मेरा आभार और शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ये विश्वविद्यालय विश्व का सचमुच सिरमौर बने, सचमुच विश्वविद्यालय बने, जो तक्षशिला और नालंदा को स्थान प्राप्त था, जिसमें 10-10 हजार पूरे विश्व के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। एक घटना फिर मैं लालच कर रहा हूं, ये जो जावा, सुमात्रा, कंबोडिया है, जिस तरह आजकल एकेडमीज हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए गाइडेंस देती हैं, और इधर हिंदू कुश पर्वत के साथ काबुल में और पेशावर में संस्कृत सीखने के 3-3 महीने के क्रैश कोर्स होते थे। और उन क्रैश कोर्सेज में संस्कृत सीखने के बाद नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में वाइवा होता था, जो उस
वाईवे को पास कर पाते थे, केवल उन संस्कृत जानने वालों को ही विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलती थी। बाकी फिर से वैसे ही नालंदा बिहार में और इधर जम्मू कश्मीर में बाहर एकेडमीज थी, वो फिर से उनको एकेडमी में उनको तैयार करते थे और फिर वो देकर के एडमिशन लेते थे। ऐसी ही स्थिति हमारे विश्वविद्यालय की बने, इस शुभकामना के साथ सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्डशिप। कागज में सागर, इतिहास, दर्शन, मेटाफिजिक्स, अध्यात्म, इतने सारे उदाहरणों के साथ इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सबके सामने रखने के लिए माननीय न्यायाधीश आपका तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया आपका। पूर्व वर्ष के आरोहण 2019 स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी मुझे आपको सुनने का अवसर मिला था। आज ऑनलाइन दोबारा मिला है। आज समाजशास्त्री की क्लास में यही डिस्कशन हो रही थी हमारी कि हम साइंस और रिलीजन को कहाँ जोड़ते हैं, क्या इनमें कोई मेल संभव है कि नहीं। आपकी बातों को सुन के एज एक अध्यापक मुझे पढ़ाने का एक नया डायरेक्शन भी मिला। अगली कक्षा में इस चर्चा को मैं जरूर आगे बढ़ाऊंगा। विश्वविद्यालय की तरफ से एक बार और मैं आपका नमस्कार करता हूं और अपने विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर एस.एस. जायसवाल को निमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद प्रस्ताव पेश करें। धन्यवाद डॉक्टर अमित। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर जी, न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल, कुलपति हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर उपनीत लल्ली, विश्वविद्यालय में मेरे सभी सहयोगीगण, प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय विवेक सिंह ठाकुर जी ऑनलाइन मोड से इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े। मुख्य अतिथि महोदय ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, अपना कीमती समय निकाला, हमारे छात्रों का मार्गदर्शन किया, अपने विचार रखे, उनके सफल जीवन के लिए कुछ अहम मूल मंत्र दिए। न्यायाधीश महोदय, विश्वविद्यालय की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भविष्य में भी आपका सहयोग, प्यार, मार्गदर्शन मिलता रहे, हमारी ऐसी कामना है। धन्यवाद मुख्य न्यायाधीश महोदय। हमारे बीच आज डॉक्टर उपनीत लल्ली जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित है, हम उनका भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। डॉक्टर लल्ली हमारे साथ मेंटर के रूप में 2 वर्ष से जुड़ी हुई है। कामना करते हैं डॉक्टर उपनीत अपना कीमती समय भविष्य में भी देंगे, हमारे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। जब जब भी छात्र हमारी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, उनको एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। डॉक्टर लल्ली एक अहम भूमिका निभाती है, उनको सहयोग करती है उनका भविष्य संवारने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर उपनीत। हम आभार प्रकट करते हैं अपने कुलपति महोदय का। कुलपति महोदय, आप जिस कुशलता के साथ विश्वविद्यालय को खुद आगे आकर बढ़ा रही है, आशा नहीं पूरे विश्वास है कि विश्वविद्यालय की प्रगति में ये मील का पत्थर साबित होगा। आप जिस तरह से हमारे हर कार्यक्रम को आगे आकर संचालित करते हैं, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के संचालक और मेंटर प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, आपको इस सफल प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमेशा एक कड़ी के रूप में रहते हैं बच्चों के बीच और डॉक्टर उपनीत लल्ली के बीच। पूरा विश्वास है आप अपना दायित्व भविष्य में इसी तरह से निभाते रहेंगे और आपका अनुभव बच्चों के काम आए, ये हमारी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। साथ ही हम आभार प्रकट करते हैं अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का।
आपने सहयोग दिया, वक्त वक्त पर आप सभी का सहयोग मिलता रहता है। आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सभी छात्र छात्राओं का आभार प्रकट करते हैं, कामना करते हैं आपका हमारे विश्वविद्यालय में आना आपके जीवन में एक सफल कार्यक्रम यहाँ पर रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। पुनः धन्यवाद। Thank you, sir. With your kind permission, ma'am, allow me to conclude the event formally. Please, beta. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, your lordship. Thank you, Dr. Nalli. Thank you, students. See you. Stop.